Good morning, everyone. Today we are going to discuss the next point of our topic. Uh, Binary to gray code converter is one of the topic in your unit number 3. Actually, we have seen it in the practical. Okay, so already its first part will be covered in unit 1. So that's why you need to just do the conversion and draw that circuit and verify it. Okay, with the help of KMap. Okay, so I hope this practical is with you and you have already learned it and also perform it. Okay, so here in case if I have time, okay, then I will prepare one video how to do the conversion of this binary to gray code converter. Okay, then I will deliver it. Okay, no problem. Now the next one point that I am going to cover is a multiplexer. Okay, multiplexer and demultiplexer is one of the point in the last this third unit. Okay, here we have to learn about these 2:1, 4:1, 8:1 multiplexers. Similarly, demultiplexers are also there. These types are 1:2, 1:4, 1:8. I hope we already covered in the practical what are the multiplexer, why multiplexers are necessary, and how to perform the practical over this. But just theoretical point of view, just I'm covering it because in your paper it may get asked in your examinations. Okay, so that's why here I'm covering it. Okay, now here we will see what is the multiplexer. Okay, and what is the demultiplexer. Now when you talk about the multiplexer, see, multiplexer is sometimes called as a multiplexor. Okay, or it is called shortly called as MUX. Okay, it is defined as a combinational logic circuit that select one of several data input. Okay, it helps you to select the one of several data input and forward it to the output. Okay, the input to a multiplexer can be any analog or digital. Multiplexer can also known as a data selector. Okay, so this is about the multiplexer. So remember it. Generally, the multiplexer is one into okay, many into one. So that's why it is mostly used in the transmissions. Okay, whenever we have to transfer data from one place to another place. So that's why multiple data we can transfer via a single line. But here the multiplexer will select only one input at a time and it will help you to transfer that data over that line. Okay. We can able to pass a data either analog signal or digital signal. Okay, and also it is called as a data selector. Okay, so generally in data communication or whenever we transfer the signal, okay, there it is particularly used. Okay, similarly its reverse is a demultiplexer, so that's why a demultiplexer is also called as a demux. Shortly we will say it is a demux, or it is called as a data distributor. Okay, it help you to distribute our data, because whatever data which we use, which we transfer with the help of mux, okay, that transmission line we will directly connect to the demultiplexer, and demultiplexer work is to do the separation of this data, and it will help you to distribute that data to the proper channel. Okay, so that's why here it is called as a demultiplexer. Okay, it is defined as a circuit that can distribute or deliver multiple output from a single input. Okay, remember what I said. Demultiplexer is defined as a circuit that can distribute or deliver multiple output from a single input. Okay, एक single input के द्वारा, इसके द्वारा आप यहाँ multiple output distribute कर सकते हो. A demultiplexer can perform as a single
input with many output switch. Okay, it has many output switches. Okay, so that's why you can easily deliver that signal to the multiple lines also. But now we will stop here for just definitions point of view. We will go it into the detail what the multiplexer and what the demultiplexer. Okay, so here we will see. Wait, I'm just adjusting here. Now in front of you a slide will be there. Okay, you can able to see everything in nicely. Now here multiplexer is useful for transmission a large amount of data over the network within a certain amount of time and bandwidth you can pass. Okay, so that's why generally the multiplexer is most prominently adopted. Now here I have given you a symbolical representation of the multiplexer. So that's why 4:1 multiplexer is shown. Okay, along with the control signal, input signal and output signal. Okay, so that's why here I0 and I1 are the input signal, and one dark arrow is shown from bottom to top. It is called as a control signal. The purpose of that control signal is to control the transmission of a input data. So that's why इनपुट में यहाँ पर मल्टीपल डाटा रहेंगे I0, I1, I2 अप टू IN. तो आपको कौन सा डाटा यहाँ पर पास करना है, इट विल बी डिपेंड ऑन दैट control signal. So that's why control signal will give you a proper guide, a proper direction. With the help of that control signal, you can able to connect the expected input to the output. Okay, so that's why the control signal is mostly important here in this multiplexer. Okay, सेकेंड डायग्राम में आपको कंट्रोल स्विच के द्वारा ही यहाँ पर बताया है. वहां दो लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बताई है और एक और डॉटेड लाइन यहाँ पर वर्टिकल बताई है और एक एरो उसके ऊपर है. तो एरो को यहाँ पर चेंज करने का काम यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल का रहेगा. तो कंट्रोल सिग्नल के द्वारा आप यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रॉपरली इनपुट अप्लाई कर सकते हो आउटपुट. ओके, तो दिस इज अबाउट दैट मल्टीप्लेक्सर. नाउ multiplexer that are built from transistors and relay are termed as analog multiplexer, but nowadays they are obsoleted. Okay, अभी मल्टीप्लेक्सर में जनरली ट्रांजिस्टर के रिले का यूज नहीं होता है. ओके, so that's why now it is obsoleted, so which are used in analog application. But now we are working in the digital application. So that's why in terms of digital application, we are building this particular circuitry with the help of logic gate. Okay, so that's why multiplexer that are built from logic gate term as digital multiplexer, which are used in digital application. Okay, so remember it. The inverse of multiplexer is called as demultiplexer. ओके, लेकिन हम demultiplexer के बारे में थोड़े देर के बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल हम मल्टीप्लेक्सर के बारे में ही जानकारी लेते हैं और यहाँ मल्टीप्लेक्सर का क्या यूज है ये सारी बातें हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं. सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट डज अ मल्टीप्लेक्सर डू. ओके, मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर क्या करता है. इन डिजिटल सिस्टम many times it is necessary to select a single data line from several data input lines, and the data from the selected data input line should be available on the output line. Okay, got this point? Just I am remembering. Okay, in digital system many times it is necessary to select a single data line from several input. Okay, तो यहाँ पर multiple data lines यहाँ पर available रहेंगे, and out of that multiple data input, okay, we have to select only one single. Okay, and that data from the selected, we can select that data with the help of the select lines, and we can connect that input to the output lines. Okay, the digital circuit which does this task is a multiplexer.
इसके लिए जो डिजिटल सर्किट आप यूज करने वाले हो, तो वो डिजिटल सर्किट को यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है। जनरली ये अक्सर डिजिटल जो सर्किट है ये हम डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल लॉजिक गेट्स। ओके, multiplexer is a digital circuit that select one of n data input and forward it to the output. Okay, the selection of one of the n input is done by the select input. To select one of several input, we need m select line. So here 2 raised to m is nothing but m. यानी आपको कितने नंबर ऑफ आउटपुट वहां पर अवेलेबल है उसके ऊपर वहां टोटल नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन अवेलेबल होंगे, यानी वह 2 के पावर में ही वो अवेलेबल रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टोटल 4 इनपुट अगर अवेलेबल है तो 4 इनपुट यानी 2 यानी 2 हो जाएगा 4। ओके, यानी 2 सिलेक्ट लाइंस वहां पर अवेलेबल रहेगी 2 यानी उसकी जो पावर है। तो m की वैल्यू यहाँ पर 2 रहेगी, तो 2 यानी n की वैल्यू यहाँ पर 4 रहेगी। अगर n की वैल्यू 8 है तो आपको यहाँ पर m की वैल्यू कितनी रहेगी? ओके, याद रखिए, तो n की वैल्यू अगर यहाँ पर 8 है तो आपको m की वैल्यू यहाँ पर 2 यानी आपको 8 मिलेगा। तो इसके ऊपर आपका यहाँ पर डिपेंडेंसी रहेगा। ओके, now depending on the digital code applied to the select input, one of n data input is selected and transmitted to the single output. Hence a multiplexer has maximum 2 n data input lines, m selected lines and 1 output line. Okay, now I am showing you here the block diagram of n(1) multiplexer, which is equivalent, okay, and its equivalent circuit shown in the another figure. See, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ n(1) मल्टीप्लेक्सर लिखा है, यहाँ D0, D1, D2 अप टू Dn-1 तक एनेबल इनपुट यहाँ पर दिया है, या उसे डाटा इनपुट कहा गया है। यहाँ मल्टीपल डाटा इनपुट प्रेजेंट रहेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह का फ्लैट सिंबल यहाँ पर शो किया गया है, और हम यह डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर ये यहाँ आउटपुट में आउटपुट लाइन बोला है आउटपुट y। ओके, और यहाँ पर बॉटम साइड में यहाँ पर सिलेक्ट लाइन दी है S0, S1 और अप टू Sn-1। ओके, तो यहाँ पर m नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस रहेंगे। तो m नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि इट विल बी अ बाइनरी पावर लेवल, उसके ऊपर वह डिपेंडेंट रहेगा। अगर आप साइड की डायग्राम अगर देखोगे तो इसमें यहाँ पर इंटरनली एक स्विच यहाँ पर लगा दिया है, और वो स्विच को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो वो सिलेक्शन यहाँ पर डिपेंडेंट रहेगा S0, S1 अप टू Sn लाइन, Sm-1 लाइन के ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट इनपुट अप्लाई करोगे उसके ऊपर यहाँ पर डाटा इनपुट यहाँ सिलेक्ट होगा और प्रॉपरली वो स्विच उस पोजीशन पर रहेगा और वो डाटा इनपुट टू आउटपुट लाइन Y को कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ यह ब्लॉक डायग्राम में हम समझ रहे हैं, हम यहाँ अभी आगे चलते हैं, हम आगे जाकर यहाँ पर इसको टोटल थरोली यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि इसको डिजाइन कैसे किया जाए। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन है भाई, हाउ डज अ मल्टीप्लेक्सर विल वर्क। ओके, तो ऑलरेडी हमको ये पता है अभी, इट हैज मेनी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। ओके, सो दैट्स व्हाई द आउटपुट गेट कनेक्टेड टू ओनली वन of the n data input at a given instant of time. So therefore multiplexer is many into one and it works as a digital equivalent of the data analog selector switch. Okay, now here I have given many types of multiplexer, so that's why multiplexer circuit का heading दिया है। इसमें आपको 2:1, 4:1, 8:1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ आपको लर्न करने हैं। आपको इसको यहाँ पर उसके सर्किटरी, ट्रुथ टेबल
बुलियन एक्सप्रेशंस, वर्किंग प्रिंसिपल, इसके साथ मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज बता रहा हूँ। सी वन बाय वन हम यहाँ पर देखते हैं ये सारी चीजें। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर 2:1 मल्टीप्लेक्सर। अभी 2:1 अगर मल्टीप्लेक्सर की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन अराइज होगा, सर इसमें कितने इनपुट रहेंगे? तो यहाँ 2 इनपुट रहेंगे और 1 आउटपुट रहेगा। तो 2 इनपुट यहाँ पर हमने ब्लॉक डायग्राम में या जो सर्किट एनालॉजी आपको शो की गई है उसमें आपको बताया, उसमें D0 और D1 यह इनपुट रहेंगे। ओके, तो ये डाटा इनपुट है यहाँ पर। ओके, गेटिंग एवरीवन? तो डाटा इनपुट यहाँ पर D0 और D1 है, और इसको यहाँ पर ब्लॉक को नाम दिया है 2:1 मक्स, और यहाँ पर सिलेक्ट लाइन है, तो यहाँ एक ही सिलेक्ट लाइन है, यानी 2:1 इज इक्वल टू 2। तो इस वजह से 2:1 only one select line will be there. So when select line will be 0 and when select line will be 1, then your input D0 and D1 are selected and they are get connected to the output. Okay, बाजू में यहाँ पर कनेक्शन डायग्राम भी बताई है। D0 और D1 आपको यहाँ पर स्विच के द्वारा कनेक्ट होते हुए दिखाई भी देंगे। लेकिन चलिए हम थोड़ा थियोरेटिकली यहाँ पर देख के आते हैं। तो थियोरेटिकली हमें यहाँ पर अभी डिजाइन कैसे करना है, तो ये सारी बातें यहाँ पर देखते हैं। ओके, सी 2:1 मल्टीप्लेक्सर समझ में आ रहा है ना भाई? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? ओके, so that's why, okay, so a 2:1 multiplexer is digital multiplexer circuit, okay, that has two data input D0 and D1, one select line S and one output line Y. okay, यहाँ पर उसे दो इनपुट रहेंगे D0 और D1, उसमें वन सेलेक्ट लाइन मैंने पहले ही कहा कि भाई 2:1 इज इक्वल टू 2, इस वजह से 2 इनपुट 1 सेलेक्ट लाइन और उसे 1 आउटपुट 100% रहेगा। ओके, नाउ व्हेनेवर वी हैव टू इंप्लीमेंट दिस, सो 2:1 अगर मुझे इंप्लीमेंट अगर करना है तो क्वेश्चन अराइज होगा, भाई मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा? तो यहाँ पर मुझे यहाँ 2 एंड गेट और एक और गेट और एक नॉट गेट की जरूरत रहेगी। क्वेश्चन अराइज होगा, भाई 2 इनपुट एंड गेट, यहाँ और गेट और नॉट गेट ही क्यों? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर एंड गेट का जो पर्पस है वह एंड गेट बताता है कि भाई यहाँ 2 सिग्नल मुझे यहाँ यूज करने हैं। ओके, लेकिन 2 सिग्नल यहाँ पर यूज करते समय मुझे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन यानी कैसा कि 2 है, सो दैट्स व्हाई उस हिसाब से मुझे यहाँ ए बार सॉरी ए बी। ओके ओके ठीक है, मैं यहाँ पर आपको पूरा ट्रुथ टेबल में ही बताता हूँ। ओके, सभी बातें ओके। चलिए पहले हम यहाँ पर सर्किट देख लेते हैं कि भाई सर्किट कैसे डिजाइन किया है। ओके, इस एंड गेट को यहाँ कैसे कनेक्ट किया है, और गेट को देखिए कैसे कनेक्ट किया है, नॉट गेट को देखिए कैसे कनेक्ट किया है। अभी क्वेश्चन अराइज होगा, सर इसको यहाँ हम अंडरस्टैंड कैसे करें? सी D0 और D1 हमने यहाँ पर 2 इनपुट लिए हैं, दोनों इनपुट मैंने कनेक्ट कर दिए इन एंड गेट के फर्स्ट इनपुट को। ओके, अभी आपको ये पता है कि भाई एंड गेट का आउटपुट कब प्रेजेंट रहता है? ओके, कोई बताएगा? एंड गेट का आउटपुट व्हेनेवर अगर दोनों इनपुट अगर प्रेजेंट रहेंगे तो ही इसका आउटपुट प्रेजेंट रहता है, अदरवाइज नॉट। गेटिंग माय पॉइंट? सो एंड गेट में अगर दोनों इनपुट अगर प्रेजेंट रहते हैं तो ही इसका आउटपुट प्रेजेंट होगा, अदरवाइज इसका आउटपुट प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करनी है। तो इस वजह से मैंने एक इनपुट D0 यहाँ इस एंड गेट के फर्स्ट को कनेक्ट कर दिया और दूसरा D1 सेकंड एंड गेट के फर्स्ट इनपुट को कनेक्ट कर दिया। यहाँ मेरी फर्स्ट D0 और D1 की बात खत्म हो गई। अब क्वेश्चन है कि भाई यहाँ दूसरा इनपुट 1 कैसे अवेलेबल कराना? तो वह 1 अवेलेबल कराने के लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट लाइन का यूज किया, एस यहाँ पर इस तरह कनेक्ट किया है कि मैंने यहाँ एस को नॉट गेट के द्वारा
फर्स्ट एंड गेट के सेकंड लाइन को कनेक्ट किया है और एस डायरेक्टली सेकंड एंड गेट के सेकंड इनपुट को कनेक्ट किया है। देखिए अभी अभी एंड गेट के आउटपुट मैंने और गेट को कनेक्ट कर दिया। और गेट का पर्पस पता है आपको, एडिशन ऑफ टू इनपुट, सो दैट्स व्हाई वह डायरेक्टली एज अ आउटपुट आपका रहेगा। ओके, तो आपको मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट मिल गया। ओके, तो वेरी सिंपल, आपको वहां पर मक्स मिल गया ना। अभी क्वेश्चन आ रहे होगा सर हम इसका ऑपरेशन अंडरस्टैंड कैसे करें। देखिए, अगर आपके पास D0 इनपुट अवेलेबल है तो D0 इनपुट अवेलेबल होगा तो एंड गेट 1 जो है वह एंड गेट 1 को आपको एनेबल कराना है। अगर उसको एनेबल कराना होगा तो सेकंड जो इनपुट है वो भी 1 होना चाहिए, तभी वो D0 वहां से पास होगा। बराबर है ना? गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या सेंटेंस बोला, अगर आपके पास D0 इनपुट प्रेजेंट है तो D0 इनपुट अप्लाइड है एंड गेट के फर्स्ट इनपुट को। अगर एंड गेट का आउटपुट आपको जनरेट करना है तो कैसे जनरेट करेंगे? एंड गेट का आउटपुट कैसे अवेलेबल होगा? एंड गेट का आउटपुट अवेलेबल होने के लिए एंड गेट के सारे इनपुट यहाँ पर 1 होना चाहिए। जब 1 रहेंगे तभी डाटा जो D0 है वो पास हो पाएगा। तब अभी यहाँ पर सेकंड जो इनपुट है वो मुझे पता नहीं है, तो वो मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, एस को 0 कनेक्ट कर दूंगा। एस यानी यहाँ पर सेलेक्ट लाइन को 0 बिट कनेक्ट कर दूंगा। अगर 0 बिट कनेक्ट किया तो क्या होगा, 0 बिट कनेक्ट किया तो यहाँ पर वह बिट आपका नॉट गेट के द्वारा 1 हो जाएगा। अगर नॉट गेट के द्वारा अगर 1 होता है तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड गेट का सेकंड इनपुट 1 हो गया, और जैसे ही वो 1 हो गया तो एंड गेट का आउटपुट अवेलेबल हो गया, और वो और गेट के फर्स्ट इनपुट का अवेलेबल हो गया, और गेट का आउटपुट y अवेलेबल हुआ। इस तरह D0 y को पास हो जाएगा। गॉट इट? उसी तरह D1 अगर अवेलेबल अगर होगा और D0 अवेलेबल नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में आप अभी यहाँ एंड गेट 2 का आउटपुट कैसे पास कराओगे y को? तो वो पास कराने के लिए D1 अगर प्रेजेंट है तो D1 अगर यहाँ पर एंड गेट 2 का फर्स्ट इनपुट अगर प्रेजेंट है तो आपको सेकंड इनपुट भी प्रेजेंट कराना पड़ेगा। तो S अभी पहले हमने देखा कि भाई S अगर 0 है तो S को यहाँ पर 1 कर दो। अगर S 1 हो गया तो नॉट गेट का आउटपुट हो जाएगा 0, और यहाँ S का जो 1 बिट है वो डायरेक्टली यहाँ पर एंड गेट 2 के सेकंड इनपुट में अवेलेबल हो जाएगा, और वो जैसे ही अवेलेबल होता है D1 आपका पास हो जाएगा, और D1 अगर पास हो गया तो Y अवेलेबल हुआ। इस तरह ये सर्किट वर्क करेगा। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? ओके, अब हम आगे चलते हैं। अभी मैं यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम, लॉजिकल सिंबल यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम और लॉजिकल सिंबल आपको डायरेक्ट ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पर इस तरह D0 और D1 और Y और सिलेक्ट लाइन। अभी हम यहाँ पर फाइनली ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल यहाँ पर इस तरह रहेगा, when S is equal to 0, D0 is available, when S is equal to 1, D1 is available. Now you are very good. Okay, now you are knowing that here what is the truth table. So that's why this is about the truth table. ओके, और यहाँ पर नीचे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे के रखा है मैंने कि भाई ये सर्किट कैसे वर्क करेगा। ओके, सो यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ। सो ये वीडियो यही स्टॉप कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, आप इसमें आप कमेंट में आपका अटेंडेंस यहाँ पर पुट आउट करो। सभी लोग आप यहाँ पर रोल नंबर और आपका नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपका अटेंडेंस यहाँ पर आपको अगर लगाना होगा तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखिए, मैंने 2:1 मल्टीप्लेक्सर बताया अभी। जैसे ही हम यहाँ पर आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है 4:1 मल्टीप्लेक्सर। 4:1 मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट रहेंगे
वन आउटपुट रहेगा और क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ पर सेलेक्ट लाइंस कितने रहेंगे। तो 4 यहाँ पर n की वैल्यू है, 2m इज इक्वल टू 4, यानी m की वैल्यू बताइए मुझे भी। तो यहाँ उसका m की वैल्यू आएगा 2 इज नथिंग बट 4। ओके, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस रहेंगे 2। ओके, तो यहाँ सेलेक्ट लाइंस 2, 4 इनपुट और 1 आउटपुट रहेगा 4:1 मल्टीप्लेक्सर में। So that's why a 4:1 multiplexer is a digital multiplexer that has 4 data input, 2 select lines and 1 output. Got it? Now to implement 4:1 multiplexer circuit we need, okay, अपने को यहाँ पर 4 AND गेट रिक्वायर्ड रहेंगे। जैसे लास्ट 2:1 मल्टीप्लेक्सर में 2 AND गेट रिक्वायर्ड थे, वैसे यहाँ पर 2 की जगह 4 इनपुट है तो 4 AND गेट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। लॉजिक गेट और गेट यहाँ पर एक ही रिक्वायर्ड रहेगा क्योंकि वह एडिशन करने वाला है और वो आउटपुट जनरेट करके देने वाला है। और आपको यहाँ पर नॉट गेट यहाँ पर और एक बढ़ जाएगा, सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पर 2 नॉट गेट की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो इतनी यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, चलिए देखते हैं आगे। In a 4:1 multiplexer, 4 input D0, D1, D2 and D3, okay, are the input and 2 data select lines that are S0 and S1, okay, as 4 input representation। okay, तो आपको यहाँ पर 4 input representations रहेगा कंट्रोल लाइंस, यहाँ पर डाटा लाइंस या डाटा कंट्रोल लाइंस के द्वारा। okay, one of these 4 input will be connected to the output based on the combination of the input at the selection line। okay, तो मैं आपको यहाँ पर लॉजिक सर्किट यहाँ पर बता रहा हूँ। लॉजिक सर्किट आपका कुछ तो इस तरह रहेगा। ओके, इसमें 2 सेलेक्ट लाइंस रहेंगे S0 और S1। ओके, ये S0 और S1 डायरेक्टली यहाँ अवेलेबल होंगे। ओके, तो आप यहाँ पर वह एंड गेट को कनेक्ट करोगे, ओके, डायरेक्टली S0 और S1 और विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। ओके, और D0, D1, D2, D3 ये डाटा इनपुट रहेंगे। ये सभी एंड गेट के फर्स्ट इनपुट को कनेक्टेड रहेंगे। सो दैट्स व्हाई ये डाटा इनपुट है, इसके द्वारा आपको यहाँ डाटा ट्रांसफर करना है। ओके, और आउटपुट ऑफ एंड गेट और गेट को कनेक्टेड रहेगा और गेट का आउटपुट Y यहाँ अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पर एडिशन करेगा सभी को, तो जो इनपुट यहाँ आउटपुट का एंड आउटपुट का प्रेजेंट रहेगा वो आउटपुट Y कहलाएगा। ओके, अभी यहाँ पर हम देखते हैं इसका सर्किट का ऑपरेशन। ओके, तो पहला देखते हैं भाई, यहाँ पर अगर पहला एंड गेट है, इस एंड गेट का D0 में अगर इनपुट प्रेजेंट अगर होगा तो अभी यहाँ वह आउटपुट में कैसे अवेलेबल होगा। तो आउटपुट में अवेलेबल होने के लिए आपको यहाँ पर S0 और S1 शुड बी ओके 1। ओके, यानी कब, जब यहाँ पर इन्वर्टर का आउटपुट यहाँ प्रेजेंट रहेगा 1 तभी। यानी एंड गेट के दोनों इनपुट 1 रहेंगे तभी यहाँ आपको आउटपुट ऑफ एंड गेट प्रेजेंट रहेगा D0, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ आपको अगर दोनों इनपुट जो एंड गेट के हैं वह अगर 1 होने चाहिए तो यानी इन्वर्टर का आउटपुट भी 1 होना चाहिए। अगर इन्वर्टर का आउटपुट 1 है तो इन्वर्टर का इनपुट रहेगा 0, यानी S0 और S1 की वैल्यू रहेगी 0, तभी वो पॉसिबल है ना। सो दैट्स व्हाई व्हेन S0 एंड S1 शुड बी 0, then output of inverter is 1, and as it is 1, then second and third input of AND gate is 1, and as it is 1, D0 will be available at output. So that's why Y is directly proportional to D0. Okay, आपको expressions भी यहाँ पर रहेगी। हाँ, तो मैंने शायद यहाँ पर expression देने की कोशिश की है। हाँ, यहाँ expression दी है S0 S1 dash is equal to
ओके, एस वन डैश एस जीरो डैश डी जीरो, ओके, ये एक्सप्रेशन रहेगी. सो दैट्स व्हाई ट्रुथ टेबल में भी बताया है व्हेन एस जीरो एस वन बोथ आर जीरो, डी जीरो विल बी अवेलेबल. नाउ when s0 is 0 and s1 is 1, okay, then d1 will be available. या उल्टा आप कर लो. ओके, तो आप जैसा मेरे ख्याल से ओके अपन ऐसा ही लेते हैं. when s0 is 0 and s1 is 1, okay, then d1 is available. okay, so that's why यहाँ पर आपको d1 आउटपुट, अगर आपको आउटपुट चाहिए है y is equal to d1, तो यहाँ आपको second and third input of AND gate, second AND gate should be 1. So it should be 1 0. Okay, so that's why S1 should be 1. Okay, and S0 should be 0. ओके, S0 क्यों 0 रहना है? क्योंकि ये S0 इन्वर्टर के द्वारा आ रहा है. सो इन्वर्टर का आउटपुट यहाँ 1 रहना चाहिए. तो इस वजह से इन्वर्टर का इनपुट यानी S0 should be 0. If it is 0, then only its output is 1 and output of AND gate will be D1 and it will be available at Y. ओके, तो उसी तरह आपको यहाँ पर थर्ड एंड गेट और फोर्थ एंड गेट का आउटपुट भी ट्रेस करना है. गेटिंग एवरीवन? ओके, तो यहाँ आपको लॉजिकल डायग्राम यहाँ पर शो की है 4:1 मल्टीप्लेक्सर. ओके, बॉटम साइड में आपको S0 और S1 बताया है. ओके, सिमिलरली यहाँ पर इनपुट बताया है I0, I1, I2, I3 और Y आउटपुट शो किया है. ओके, उसी तरह यहाँ पर ये सर्किट लॉजिक सिंबल और स्विचिंग एनालॉजी आपको बताई है. ओके, देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ. गेटिंग एवरीवन? हाँ, सबको दिख रहा है. अभी यहाँ पर 4:1 जो मल्टीप्लेक्सर है वह यहाँ ब्लॉक है. उसमें 4 इनपुट है, डाटा इनपुट D0, D1, D2, D3. या ऊपर के डायग्राम में I0, I1, I2, I3 बताया था. बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम. ओके, और S0 और S1 यहाँ पर इस तरह इनपुट दिए. ओके, और Y एज आउट. और यहाँ पर बाजू में आपको स्विचिंग एनालॉजी बताई है. स्विचिंग एनालॉजी कुछ इस तरह है. ओके, तो S0 और S1 जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये स्विच यहाँ पर इंटरनल जो है वह स्विच करेगा. ओके, मूव आउट करेगा. ओके, तो D0, D1, D2 या D3 के ऊपर वो मूव करेगा. ओके, इट विल बी डिपेंड ऑन द सिलेक्ट लाइंस. ओके, ये ब्लॉक डायग्राम है. यहाँ पर n कंट्रोल लाइंस और n नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल और आउटपुट. ओके, यह थ्योरेटिकली आपको बताया कि भाई यहाँ पर कैसे आउटपुट प्रेजेंट रहेगा. ये ट्रुथ टेबल है S0, S1 और Y. लॉजिकल डायग्राम यहाँ पर, लॉजिकल एक्सप्रेशन ओके आपकी यहाँ पर बताई है. नाउ अगर मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर, तो क्वेश्चन अराइज होगा हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर और कौन कौन से हैं. तो जनरली हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर रहते हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर या 16:1 मल्टीप्लेक्सर. ओके, हमने प्रैक्टिकली ऑलरेडी देखा है 8:1 मल्टीप्लेक्सर. ओके, सो दैट्स व्हाई 8:1 मल्टीप्लेक्सर अगर आप डिजाइन करना चाहते हो तो वो आप डिजाइन करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर 8:1 मल्टीप्लेक्सर अगर आप डिजाइन करोगे यूजिंग 4:1 या यूजिंग 2:1 भी आप डिजाइन कर सकते हो. ओके, वी नो 4:1 मल्टीप्लेक्सर हैज 4 इनपुट, ओके, and 2 select lines and 1 output, whereas 8:1 multiplexer will have 8 input, 3 select lines and 1 output. So that's why just by addition of 2, okay, अगर मेरे पास okay, we require 2 4:1 multiplexer in first stage. Okay, in first stage in order to get the 8 data input, since each 4:1 multiplexer produces 1 output, we require 2:1 multiplexer in the second stage by considering the output of the first stage as input to produce the final output. आप यहाँ पर इस तरह का ट्रुथ टेबल यहाँ अप्लाई कर सकते हो.
ओके, इस तरह का ट्रुथ टेबल आप यूज कर सकते हो, S2, S1 और S0। ओके, Y आउटपुट रहेगा, तो व्हेन बिट विल बी 0 0 0, I0 विल बी, और व्हेन इट इनपुट बिट सिलेक्ट बिट विल बी 0 0 1, I1 विल बी प्रेजेंट। ओके, तो इस तरह आप यहाँ पर ट्रुथ टेबल इसमें इस सर्किट में वेरीफाई भी कर सकते हो। लेकिन मैंने जब प्रैक्टिकली आपको बताया था वो आईसी के द्वारा बताया था, आईसी में डायरेक्टली 8:1 था, यहाँ पर मैंने आपको 4:1 दो मल्टीप्लेक्सर है और 2:1 एक मल्टीप्लेक्सर है, आप इस तरह भी डिजाइन कर सकते हो। ओके, या डायरेक्टली 8:1 मल्टीप्लेक्सर आईसी फॉर्म में अवेलेबल रहता है, तो वो आईसी फॉर्म का डायरेक्ट मल्टीप्लेक्सर भी ले सकते हो। ओके, अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह अगर मल्टीप्लेक्सर आपको अगर डिजाइन करोगे तो इसमें दो मल्टीप्लेक्सर लगेंगे 4:1 के, और उन दोनों के सिलेक्ट लाइंस यहाँ पर ज्वाइन कर दो और उनको यहाँ S0 S1 और S2 यहाँ 2:1 मल्टीप्लेक्सर को कनेक्ट करना रहेगा, याद रखिए यहाँ पर। और I0 से लेकर I7 एज इनपुट अप्लाई करना है। 4:1 मल्टीप्लेक्सर पहले का मल्टीप्लेक्सर और सेकंड मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट एज अ इनपुट 2:1 मल्टीप्लेक्सर में कनेक्ट करोगे और उसका आउटपुट रहेगा आपको Y। ओके, इस तरह आप यहाँ पर ये मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर सकते हो। ओके, so I request you to give your attendance in a video comment box, so आप वहाँ अटेंडेंस अगर लगाओगे तो मैं उसको वहाँ मेरे यहाँ नोट आउट कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।